Any one of you. नहीं चलेगा। May I speak over you? नहीं All चलेगा। of permission. Please, go ahead. Lesson plan which we create for the teaching our student in a very sharp way, in a very precise way, that is called the lesson plan. Very good. And we simply using our skills how to convince them with our contents which we are applying in our lives. Very good. Okay. So that is the learning components of lesson plan. According to the definition, that is Wikipedia dictionary, a teacher's detailed description of the course of instruction for an individual lesson, not public, for an individual. Prerequisite for a good lesson plan. एक अच्छे लेसन प्लान के लिए क्या जरूरत होती है? The teacher must have a thorough knowledge about his students' skills and abilities. The teacher must have mastery over the subject. Sorry for the The teacher should be thoroughly acquainted with the principle of teaching and the learning. The teacher should have adequate training of the skills required to construct a good lesson plan. मुझे पता है आपको सभी को पता होगा क्योंकि आप लोगों ने सभी लोगों ने किया है. The content of the lesson should be arranged in psychological and logical fashion. The teacher must be conversant with the new methods and technique of teaching. Here the start. Basic three things पर हम लोग ध्यान देते हैं अपने components में. That is cognitive, affective and psychomotor. Actually student को ये तीन चीजें बहुत जरूरी है. लेवल के अनुसार हम लोग इसको लेसन प्लान करते हैं. मोटिवेशन के लिए हम लोग तमाम चीजों का इस्तेमाल करते हैं पढ़ाई के दौरान. Either dancing, singing, acting, exercising, group activity, or asking questions. These are some of the motivational activities that can be utilized in our lesson plan to make it more effective and more fruitful for the students. Development आप इसको अपने तरफ से इजाद कर सकते हैं. वो एक्सपीरियंस का साथ भी हो सकता है एक्टिविटी या फिर कंटेंट जो आपके पास है टॉपिक है कंसेप्ट है उसको किस तरह से आप अपना डेवलप करते हैं ग्राफिक वगैरह तो टीचिंग एड्स आप बना सकते हैं. Nowadays it is more useful because of the techniques. अभी टेक्निकल इतना आ गया है कि इसके जरिए हम तमाम किस्म की चीजें यूज कर सकते हैं. लेकिन बेसिक बेसिक्स हमारा वही है प्रैक्टिस एंड ड्रिल, क्वेश्चनिंग, लेक्चर एक्सप्लेनेशन, डेमोंस्ट्रेशन, एक्सपेरिमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट है उसके आधार पर ये सारी चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं और मुझे उम्मीद है सभी लोग कर रहे हैं. इसमें कोई जरा नहीं उसको एक्सप्लेन करके बच्चों को उसमें एक कंटेंट को समझने की जो है आइडिया दे सकते हैं. डेमोंस्ट्रेशन के जरिए भी हम लोग कर सकते हैं. क्रिएटिवनेस एंड डिस्कवरी स्किल ये साइंस वालों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उन लोगों को जो है एक्सपेरिमेंट जो है लैब में करना. So, in your lesson plan, you must think all these particular things. Materials and media का भी काफी important चीज है. Otherwise, you will not be able to instruct your students. Resources, instruction aids, based on the objective and content of a lesson plan. Whatever you have made the lesson plan, whatever chapter you are going to teach, you must have all the resources to instruct the student in a better way, to make them understand the real what the age, ability and interest of your student. किस क्लास में जा रहा है, किस हिसाब से जा रहे हैं, क्या पढ़ाना है, इनको पहली तरह से आपको समझ लेना होगा कि what are you going to give on this particular period. आप एक 40 मिनट के पीरियड में बच्चों को क्या बताना चाहते हैं, what is the objective of the lesson, it must be in your mind. And to determine whether the objective of the lesson has been achieved and to ensure understanding of the lesson, आपको रिव्यू और चॉकबोर्ड एक्टिविटीज ये दो एक्टिविटीज करना जरूरी है ताकि हमें पता चले कि आखिरकार व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द लेसन प्लान दैट वी हैव मेड. नेक्स्ट रिव्यू के लिए हम बहुत सारे काम करते हैं. होल एंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट टॉपिक्स का समराइज. कभी बच्चों से हम लास्ट में सवाल करते हैं, पूछते हैं या उनसे कोई ऐसे एक्टिविटी उनसे करते हैं कि अगर आप मुझे समझ में नहीं है तो आप बोलिए. ये सारी चीजें एक्टिविटी चॉकबोर्ड एक्टिविटीज कर सकते हैं या हम लोग क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं. इसके साथ बहुत सारे जो है सैंपल पेपर में क्वेश्चन आता है या हम लोग पहले से क्वेश्चन बना के रखते हैं. एक्टिविटीज जो कि हम लोग अपने बच्चे में कर सकते हैं लेसन प्लान के दौरान. लेकिन सबको याद रखिए कि आपको टाइम फॉरगेट करना जरूरी है कि कितने मिनट में हमको क्या करना
student to interpret a cartoon map or model related to the lesson. अगर आप चाहते हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा समझें, तो उनके लिए सबसे बेहतर होगा कि कार्टून मैप या मॉडल रिलेटेड लेसन से बनाने के लिए। जैसे हम लोग लर्निंग में कहते हैं कि आप लोग ये चेक करके जाए, जैसे क्लास में ड्रेनेज ट्री क्लाइंबिंग है, हम लोग कहते हैं कि ना जो है बना के लाइए, वो पोस्टर देता है। हैव वन ऑफ द स्टूडेंट गिव द ओरल रिपोर्ट। अगर हो सके तो बच्चों में से किसी को एक आइडिया दीजिए कि प्लीज समराइज द क्लास। जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लास में करते थे कि थोड़ा पढ़ाने के बाद लास्ट में किसी एक बच्चे को मैंने कहा कि भाई समराइज द क्लास, तो ही और सी विल समराइज द होल क्लास। इससे आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ाया वो कहाँ पर उसमें लेसन प्लान आपको जो है सही जा रहा है। हैव डिबेट्स, अगर पॉसिबल है तो सर्टेन टॉपिक कैसे है जिसपे आप डिबेट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत पहले से तैयार रहना होगा कि क्या क्या टॉपिक आपको करना है। वर्क और टेक होम एक्टिविटी लेसन प्लान जब भी बनाते हैं तो आपको माइंड बनाना चाहिए कि आप जो जितना पोर्शन आप पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाने के बाद उसके हिसाब से आपका होम असाइनमेंट भी देना पड़ता है। और होम असाइनमेंट ऐसा होना चाहिए जो उस टॉपिक से रिलेटेड हो, और ज़्यादातर हो सके तो प्रैक्टिकल थिंकिंग के दे, ताकि बच्चा जो है अपने आसपास के माहौल से सीख कर उसको जो है बना सके। दैट विल बी बेटर फॉर देम। Now, the teacher should ensure an active participation even in the lesson plan stage. आप जब लेसन प्लान बना रहे हैं तो इस बात को खास तौर से ध्यान रखें कि आप जो पढ़ाने जा रहे हैं, आपके जो भी टाइम लिमिट है 45 मिनट्स आपके हैं, तो 45 मिनट के दौरान में फर्स्ट पार्ट इनका पे चला जाता है वार्म अप करने, क्योंकि एक मिनट से ओवर के दूसरे को रिसेट करने में बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है। तो उस समय अभी आपको इस तरह से यूज करना चाहिए कि सबसे पहले उसको वार्म अप करें और उसको ऐसा स्टेज कराएं, ऐसे टैलेंट करें कि वो participant है। Even during the time of preparing the lesson plan, teacher should know the level of the knowledge of the student. आप ऐसा ना हो कि जैसे एक ही लेवल के हिसाब से आपका लेसन प्लान होना चाहिए। जिस क्लास को पढ़ा रहे हैं उसी क्लास के हिसाब से उसका लेसन प्लान होना चाहिए, ताकि बच्चों की नॉलेज के हिसाब से आपका जो मैच कर सकें। कंसिडरेशन फॉर लेसन प्लान, आपको जब भी लेसन प्लान बनाना है तो यू मस्ट कंटेन 3 थिंग्स: स्टूडेंट्स, कंटेंट, materials. First of all, whom are you going to teach? The students, which class के हैं, उनका क्या जो पढ़ा रहे हैं उसका कंटेंट क्या है जो आप पढ़ाने जा रहे हैं, या उस कंटेंट को पढ़ाने के लिए what are the materials that will be fruitful for them to make them understand in the real world. स्टूडेंट्स के लिए the points to consider are, जब आप लेसन प्लान करते हैं, abilities and interest, background, attention, ability to work in group, background knowledge, special need and learning. ये सारी बातें हमें माइंड में रखना है जब हम अपना लेसन प्लान तैयार कर रहे हैं कि जिस स्टूडेंट को आप जा रहे हैं, जिस क्लास को पढ़ाने जा रहे हैं, उनके जो है 60 बच्चे हैं, 60 का अलग इंटरेस्ट होगा, 60 का अलग एक्टिविटीज होगा, सबका एक जैसा नहीं होगा, उनके सबका कंसिडर करके आपको बनाना है। कंटेंट करना तो टीचर शुड कंटेंट The teacher to consider subject matter, curriculum method, आप जो भी पढ़ाने जा रहे हैं, whatever you are going to teach, you must know that what is the subject matter of that particular thing. Whether you are teaching in school or university or whatever the curriculum it is. Now lesson plan components. क्या-क्या components हैं? Number 1, profile. Number 2, objectives. Number 3, materials. Number 4, procedure. And number last, assignment. These are the 5 basic components of lesson plan, and you must take care of all of these. First of all, Jason, what is meant for profile? yes, let us go. जब आप lesson format बनाते हैं, उसका ये टाइटल दिया होगा. First of all, title of the lesson. Which lesson is going to be taught in the class? Number 2, contributor. मतलब who is the writer of any other book? Subject क्या है? Grade level of the learner, instructional settings, general description of the lesson, standard. These are the things are under the profile, and you must take care of all of these things one by one, unless you understand the things. Now the objectives. Determine what the students should learn and do. यहाँ से नहीं होगा सर, यहाँ से आप करना पड़ेगा। जब लेसन प्लान बनाते हैं
तो आपका ये रिटर्न ऑब्जेक्टिव आपके माइंड में होना चाहिए कि why I take the content, what they will be able to grasp, and what they will learn, and what they will do or utilize in their daily life. After that, you have to focusing on the concept and the skill to be taught. What is the concept? What we are going to teach them? उसी में रखना ही Now the materials. Students, content, now the materials. These are the things that should be taken care of before going to or before making any lesson plan. जब आप lesson plan बना लेते हैं, lesson plan बनाने के लिए क्लास में जब implement करना है, whenever you are going to implement the lesson plan, आपको ये materials आपके पास होना चाहिए. Either you can do PowerPoint presentation if possible in the class, because most of the classes are not so much advanced in technology. अगर आपके पास सुविधा है इस किसी में जहाँ पर आपको डिस्प्ले बोर्ड वगैरह सब कुछ है, तो बेहतर होगा कि आप जिस चैप्टर में पढ़ा रहे हैं, whatever chapter you are going to, अगर पहले से आप एक PowerPoint presentation बना लेते हैं उस टॉपिक्स के बारे में, तो आपको ज़्यादा और बच्चे में ज़्यादा अट्रैक्टिव तौर पर सीखेंगे, because they are interested in audio visual things. So suppose you are going to teach any chapter in your class, it must be, if it is possible, PowerPoint. नेक्स्ट द टेक्स्ट बुक इज ऑलरेडी देयर, बसों में चला रहा है, टेक्स्ट बुक आपको पास होनी चाहिए चैप्टर के साथ. जर्नल एंड आर्टिकल्स, अगर इससे रिलेटेड कोई एडवांस आर्टिकल आया हुआ है, ये ज़्यादातर काम करता है हम लोग जैसे कि साइंस वगैरह में, जहाँ पर तमाम चीज़ों के बारे में एडवांस में आर्टिकल आते रहते हैं, जर्नल में निकलते रहते हैं. बहुत सारे साइंस मैगजीन्स हैं जहाँ बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको नए नए कॉन्सेप्ट मिलते हैं. तो इफ़ यू आर एबल टू टेक द, अगर आप उसके पास है, जनरल आर्टिकल्स भी हेल्प करेंगे आपको लेसन प्लान को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने. मल्टीमीडिया मटेरियल्स सेम है, आप पेन ड्राइव में बनाते हैं. जॉब अगर उससे रिलेटेड कोई ऐसा आप देख रहे हैं कि उस सब्जेक्ट से, उस टॉपिक से रिलेटेड कोई आने वाले फ्यूचर जॉब के लिए कोई कनेक्शन है, तो उसको दिस नॉलेज की या दिस टॉपिक की मोर रिलेटेड टू योर फ्यूचर लाइफ ऑल्सो. And take lesson. Before going to take class, you must take all these things. If you are able to do this. Procedure. Procedure क्या है? Outlining the steps of the teaching learning process. Whenever we are going to, या जब भी हमको पीरियड असाइन होता है, कोई या फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड मेन सबको मिलता है, तो आउटलाइन प्लानिंग. We must have the outline, what to do, how to do, why to do. ये तीन चीज, what to do, how to do, and why to do. ये तीन चीज मस्ट बी इम्पोर्टेंट. इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी एंड लेसन प्लान. आपने जो लेसन प्लान बनाना है किस भी टॉपिक के लिए बनाया है, व्हाट इज द स्ट्रेटजी, हाउ वुड यू इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर थिंग, हाउ इट विल अफेक्ट द स्टूडेंट. इन चीज़ों पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है. दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स बिकॉज इट विल नॉट बी फ्रूटफुल फॉर द स्टूडेंट्स. असेसमेंट, that is the most important part of time when we are going to take the class. जब हम क्लास ले रहे हैं तो हमें एक तरह से पता होना चाहिए क्या है उसका, वो कितना पार्ट सीख चुके हैं या सीख गए हैं. जैसे कि हम लोग वार्म अप करते हैं, पढ़ाने से पहले उसे पूछते हैं, ठीक उसी तरह पढ़ाने के बाद भी हमको एक सेशन रखना चाहिए, कम से कम 5 मिनट का सेशन, जहाँ बच्चों को ये पता रहे कि हमको बताना है कुछ, ताकि वो अटेंटिव रहे. और इससे आपको पता चलेगा कि आपने जो लेसन प्लान बनाया उसके तरह से आपके ऑब्जेक्टिव कहाँ तक सफल हुए, वेदर इट इज फुलफिल्ड और नॉट. टाइप्स ऑफ असेसमेंट. असेसमेंट के लिए आप किसी किस्म के टेस्ट यूज कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल विजिट, आप उस लेवल से कोई भी कर सकते हैं, या फिर अपने तरीके से सेल्फ टेस्ट कलर पेपर बनाइए उसे लीजिए, या इंडिपेंडेंट वर्कशीट लग सकते हैं प्रिंट आउट में. कोऑपरेटिवली फॉर्म वर्क शीट्स, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स, या ओरल डिस्कशन. ओरल डिस्कशन भी यूज होता है, बच्चों को क्लास में भी करके सवाल कर सकते हैं. क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन. And finally, we can go to the question and discussion, whether we ask the question, whether they are able to grasp the meaning of this picture or not. Now, models of lesson plan. There are 3 models of lesson plan. Number 1, begins. Number 2, middle. Number 3, 5 ends lesson plan. Let us take. Number 1, begins. Pay again attention, inform learner of objectives, stimulate recall of the prior learning, and present the stimulus. ये ज़्यादातर होता है शुरुआत में, जब हम लेसन प्लान शुरू करते हैं या फिर जब
क्लास में जाते हैं, तो हाउ टू गेन द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स, बिकॉज आपको ऑब्जेक्टिव्स आपको पहले पता होना चाहिए ताकि लर्नर को पता चले कि आपको इसके बाद व्हाई आर गोइंग टू टीच इट। लर्नर को आपको बताना पड़ेगा व्हाई आर यू गोइंग टू टीच दैट पर्टिकुलर थिंग। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि अगर इसको पढ़ने से हमको क्या फायदा होगा, क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट्स आर मोर रिलेटेड टू मार्क्स एंड नंबर्स, दे डोंट गिव मोर इम्पोर्टेंट टू द चैप्टर कंटेंट, दे आर रिलेटेड। अगर आपका चैप्टर वो कहेगा कि सर इस परीक्षा में आएगा नहीं आएगा, उसको पढ़ने की गाइड, इस बात को ध्यान रखते हैं। इस बात को हमको देखना चाहिए, उनको स्टूडेंट को स्टिमुलेट करना है कि उनको जो है किसी तरह से इसके लिए ये भी उनके लिए उतना जरूरी है। प्रोवाइड लर्निंग गाइडेंस, परफॉर्मेंस, प्रोवाइड फीडबैक, परफॉर्मेंस, एनहांस रिटेंशन, ये सारी चीजें आपको लेसन प्लान के जरिए गेन करना है। These are for the teacher, not for the student. You have to understand these things. Objective and modeling, checking, understanding, guided practice, ये सारे टीचर्स की एक्टिविटीज हैं जो कि इंटरनल रूप से वो अपने लिए करता है बिफोर द Now 5 is, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। These 5 points are most important for the involvement in the class, because unless you involve them, they will never learn. So number 1, how to engage the student. That is the first foremost implementation of the lesson plan. आप जो लेसन प्लान बना रहे हैं, आप उसको इस बात को एक्सप्लोर, आप बच्चों को एक्सप्लोर करें, हाउ मच दे हैव ऑलरेडी नो, उन लोग पहले कितना जानते हैं, प्रायर नॉलेज, एंड हाउ मच दे लर्न। नाउ द एक्सप्लेनेशन, बच्चे एक्सप्लेन करने के लायक है या नहीं किसी चीज़ को सीखने के बाद, आप उसको एक्सप्लेन करके बताइए, फिर उसको भी एक्सप्लेन करने के तरीका बताइए। नंबर 4, इलेबोरेट, how they are elaborating certain things, it is also, and last, evaluate. So these 5 P's models are most important lesson plan for our teaching learning process. Format lesson plan, ये तो सभी को पता होगा lesson plan का format क्या क्या जरूरी है। जब आप lesson plan बनाते हैं, the title of the course, evening, topic, name of the teacher, duration of the class, date and time, pace, student, methods of teaching, audio visual aids, previous background of the training, objective of the class, general objective, specific objective अगर कोई है तो, time, content, teaching learning activities, and the final stage, that is evaluation. Common problems, lesson plan के समय में जो problems होते हैं उसको भी हमें ध्यान रखना है। The following are some of the common problems in formative lesson plan. What are they? ठीक है सब में। Providing emotional control. Number 2, provision for individual difference, because there are so many students out there, ढेर सारे स्टूडेंट हैं। अब हर एक बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंस अलग अलग होता है, आप उसको जो है मायने रखने के लिए, हो सकता है कोई बच्चा बहुत तेज हो जो आपके लेसन प्लान करने से आगे जा रहा हो, और कोई बच्चा बहुत स्लो लगा जो उसको पता ही नहीं है। तो इन सब बातों का भी हमको जो है प्रॉब्लम है, इसको ध्यान रखना है। प्रोविजन ऑफ इंडिकेशन ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंस एंड प्रोविजन फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द आउटकम्स, ये दोनों चीज़ भी जरूरी है कि आपने जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस है उसको कैसे से सीखा और उसका जो इवोल्यूशन है कल उसका आउटकम क्या हुआ, ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कभी कभी कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट से सीखता है, लेकिन इन बातों को हमको रिमेडियल क्लास के जरिए ठीक करना है। Now providing a learner gains knowledge and acquires ability in the teaching learning process and develops corresponding values. अगर आपके पास इमोशनल कंट्रोल है बच्चों के लिए, तो आप इस तरह से बच्चों को जो है कभी कभी इमोशनली अटैच करके भी अपने से जोड़ करते हैं, उसको और ज़्यादा नॉलेज गेन करा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आपसे पूछने से डरते हैं, तो पहले उनको करना होगा, उनको कन्विंस करना दैट वी आर हियर टू हेल्प यू, नॉट टू डिमोरलाइज यू। This value that student acquire 16 मिनट होगा और पहले वाला 2 मिनट उसको ऐड करना है ना। So I to provide emotion control also. It is practically difficult for the teacher to gather to individual learners values and abilities. Most सभी के लिए देना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमें अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए। Thus providing emotional control is नहीं पता, हम नहीं देखे। encounter in the lesson plan. ये सभी के साथ होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इमोशनली जो है बहुत फील करते हैं, बैकवर्ड फील करते हैं जब उनको नहीं कुछ आता समझ में, तो हमें उनको जो हैंडल करना है। Provision for the evaluation outcomes. Teachers should before and decide the expected outcomes of teaching learning process and strictly incorporate them in the lesson plan according to the 3 stages of teaching. ये किसी भी लेसन प्लान का जैसा है, जहाँ हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हम जो पढ़ा रहे हैं उसका
अल्टीमेट रिजल्ट जो है बच्चों को फायदा देना है. So it is the most objective of our lesson plan. Thank you for your patience and patience. Thank you. The topic is very much important. हम ले लिए सबका. After yearly examination, I have not failed.